फिजिक्स का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मैकेनिक्स, व्हाट इज दैट, उसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कॉन्सेप्ट. व्हाट इज मैकेनिक्स? Mechanics basically deals with the study of bodies which are at rest and also the bodies which are in motion. We will discuss thoroughly about what is rest, what do you mean by motion, etc. But in the beginning I should say you that mechanics, it is divided into two branches. One is statics and another one is dynamics. ये स्टैटिक वर्ड जहाँ पे भी आएगा आप लोग ये समझ लीजिएगा कि कुछ बॉडीज हैं वहाँ पे जो कि रेस्ट पे है. ठीक है, तो स्टडी ऑफ बॉडीज एट रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक्स. एंड the part dynamics, it deals with the bodies which are in motion. Again, this part can be subdivided into two categories. इसे हम लोग बताते हैं kinematics and also kinetics. In your standard 11th and 12th, you will come across these words many a times. So what is kinematics? Kinematics basically refers to the motion of the bodies, but it does not deal with the cause of motion of the bodies. It basically deals with the kinematic variables which are speed, velocity, acceleration, etc. We will go through those in details also. And the second part is kinetics. In kinetics part, we will discuss about the cause of motion related with the body. In this case, description will contain dealings of force, energy, momentum, etc. ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि what is basically this rest and what is motion. ये इन दोनों के बारे में ही पूरा मैकेनिक्स डेवलप होता है. तो हमको ये पता होना चाहिए कि what is rest and what is motion. इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. What is rest? We will say a body is at rest if it does not changes its position with time with respect to its surroundings. Suppose आप ये ले लीजिए कि टेबल के ऊपर मैंने एक बुक रखा हुआ है. ठीक है, अगर मैं अभी देख रही हूँ बुक वहाँ पे है, कुछ देर के बाद में देखूंगी बुक वहीं पे ही है, कुछ देर बाद देखूंगी इट इज स्टिल देयर. दैट मीन्स द बुक does not change its position with respect to the surrounding in which the book is present, and it is also not changing its position with respect to time, so that I can say the book is at rest. If the body changes its position with respect to surroundings and time, then we can say that the body is in motion. अभी आप देख रहे हो एक बर्ड यहाँ पे है, कुछ देर बाद वो दैट बर्ड इज फ्लाइंग एंड कुछ देर बाद वो आपके घर के पास दूसरे वाले बिल्डिंग के ऊपर है, अभी कुछ देर के बाद अभी 2-4 घर छोड़ के उसके ऊपर है. इसका मतलब विथ योर सराउंडिंग्स एंड विथ द टाइम यू आर सेइंग दैट द बर्ड changing its position continuously with respect to the frame in which you are watching that bird. That means the bird is in motion. समझ में आ गया आपको? So we can say the body does not change its position with time with respect to its surrounding. In that case, we can say that the body is at rest. If the body changes its position with time with respect to its surroundings, then I can say the body is in motion. तो मैंने आपको ये बताया, बार बार मैं ये बोल रही हूँ कि with respect to its surroundings. इसका मतलब हम लोग कोई एक फ्रेम ले रहे हैं या फिर कोई एक बॉडी ले रहे हैं with respect to that body, and with the change in time we are considering another body. If that is changing its position, then we say that body is in motion with respect to this body. And if it is at the same place again and again with the interval of time, then with the passing time, then we can say that this body is at rest with respect to this particular frame. ये एक बॉडी हो सकता है, ग्रुप ऑफ बॉडीज हो सकते हैं, या कोई भी फ्रेम हो सकता है
जिसको लेके विथ रिस्पेक्ट टू दैट हम लोग अदर बॉडीज का पोजीशन या मोशन डिसाइड कर रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो मैकेनिक्स में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको और एक एग्जांपल देके बता सकती हूँ। आप लोग सपोज एक ट्रेन पे जा रहे हो, ठीक है, तो ट्रेन के अंदर काफी सारे लोग हैं, आप भी बैठे हो और आपके साथ कोई दूसरा पैसेंजर भी वहां पे बैठा है। इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू यू दैट पैसेंजर इज एट रेस्ट, ठीक है। लेकिन आपका कोई दोस्त बाहर खड़ा है ट्रेन के बाहर एंड द ट्रेन इज मूविंग, देन ही विल सी दैट यू आर इन मोशन along with the passenger who is sitting with you, he is also in motion, ठीक है। तो आपके लिए वो पैसेंजर रेस्ट पे है, लेकिन जो बाहर से देख रहा है उसके लिए आप भी मोशन पे हो और वो दूसरा वाला पैसेंजर भी मोशन पे है। तो यहाँ पे जो मेन फैक्टर काम करता है दैट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपका ट्रेन, जिसके अंदर आप बैठे हो, उसी फ्रेम के साथ आप मूव कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो बाहर खड़ा है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके सराउंडिंग्स, और जो प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा है वो प्लेटफॉर्म है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट यू एंड द पैसेंजर विथ यू, यू बोथ आर इन मोशन, बट विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस द पैसेंजर विथ यू इज एट रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज आता है कि आपके लिए कोई रेस्ट पे, लेकिन फॉर अदर्स दैट बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये कभी भी नहीं बता सकते कि कोई एक बॉडी ये रेस्ट पे है या मोशन पे है, ये हम लोग एक्यूरेटली नहीं बता सकते, ठीक है। इसे हम लोग कुछ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ रिलेट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स आते हैं वो होता है एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, और रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन। ये दो टर्म्स आते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपके रिलेटिव जो पैसेंजर आपके पास बैठा है वो रेस्ट पे है, लेकिन आपका जो दोस्त बाहर खड़ा है उसके रिलेटिव ये पैसेंजर मोशन में है, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन। व्हाट अबाउट एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन? सो यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट रेस्ट तभी बताएंगे अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी रेस्ट पे हो और बॉडी भी रेस्ट पे हो, तभी हम लोग बता सकते हैं कि द बॉडी इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। सो यू थिंक योरसेल्फ, is it possible to get a body which is at absolute rest always? Just think about it. देखिए हम लोग सब, अभी मैं एक चेयर लेके यहाँ पे बैठ जाऊंगी और मैं बताऊंगी कि I am at rest, but can I say I am at absolute rest? No, because I am residing on the surface of earth and earth is constantly moving, earth is constantly revolving the sun, so I can never say that I am at absolute rest. Everything which appears to you as a rest body in your surroundings, that is actually not at absolute rest, because the earth is constantly in motion. The main frame of reference for our study of mechanics, that is the earth. If we are considering earth as a frame of reference, then we are never at absolute rest, ठीक है। वैसे ही हम लोग बता सकते हैं if the frame of reference is at rest and the body is in motion, we can say that the body is in absolute motion. But can it is possible? Can it be possible? No. Again, the frame of reference cannot be at rest, because it is not at rest. Earth is constantly in motion. So clear? So we can never say a body is at absolute rest or a body is in absolute motion, because the main frame of reference which we are considering our earth, that is constantly in motion. But yes, every body which is at rest or in motion, we can say that it is relative to somebody else. Clear? अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो डायमेंशंस में चेंजेस होते हैं, बॉडी जब मूव करता है
तो वो कैसे चेंज होता है। तो हम लोग अभी लेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, इसे हम लोग बताते हैं 1D, मोशन इन 2 डायमेंशंस 2D, और मोशन इन 3 डायमेंशंस 3D। ये होते क्या हैं बेसिकली देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली लेते हैं वो होता है हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, which consists of 3 axes x, y and z, and each axis is perpendicular to the other one। ठीक है, तो यहाँ पे x, y, z ये जो 3 एक्सेस मैंने लिए हैं, 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसमें हम लोग ये बता सकते हैं कि इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन in a particular direction, we can say that it is having 1 dimensional motion। इसका मतलब है कि जो x कोऑर्डिनेट होते हैं, y होता है और z होता है, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट वैरी कर रहा है, इसलिए हम लोग उसे बताते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। देखिए मैंने यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन लिया हुआ है। सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट M टू दिस पॉइंट N। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए पार्टिकल अभी कुछ टाइम पे इस पॉइंट पे था, ठीक है, अभी कुछ देर बाद अभी पार्टिकल कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। इसका मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस में इसका वैल्यू बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। टाइम टू टाइम द पार्टिकल इज मूविंग forward along the positive x direction, so only x coordinate changes। इसके लिए y क्या है, y तो फिक्स है, y तो चेंज ही नहीं हो रहा है। ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है दिस इज पैरेलल टू x axis only, so the change of coordinate which happens here is only the change in x coordinate। That's why we say that a particle moving parallel to a particular coordinate axis, in that case we can say that the particle is having 1 dimensional motion। ऐसा नहीं है कि सिर्फ x axis को ही पैरेलल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि कोई पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब इसका सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और कोई पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है पैरेलल टू z एक्सिस, इसका मतलब इसका सिर्फ z कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। देखिए x तो इसका फिक्स है, इसके लिए तो y नहीं है, y तो 0 है, और यहाँ पे भी देखिए सिर्फ y के लिए यहाँ पे z कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स है, लेकिन x का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, x यहाँ पे 0 है। तो फिर यहाँ पे मैं बता सकती हूँ कि द पार्टिकल इज हैविंग 1 डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट मैं अभी देखूंगी व्हाट इज मोशन इन 2 डायमेंशंस। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। सपोज एक्स वाई प्लेन में ले रही हूँ, इस वाले प्लेन ले रही हूँ, आप चाहे तो वाई जेड भी ले सकते हो, एक्स जेड भी ले सकते हो। सपोज इन एक्स वाई प्लेन ए पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सपोज यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट था x1 y1, अभी वो मूव करके b पे पहुंच गया है, तो b पे देखिए x का वैल्यू यहाँ पे इतना ही था, x1 मतलब क्या होता है, इतना ही पार्ट था, इतना ही पार्ट था x1, अभी b पे जाके वो यहाँ पे पहुंच चुका है, इसका मतलब x2 इज वेरी मच ग्रेटर देन x1, तो x कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे चेंज हो गई। y की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, देखिए यहाँ पे पॉइंट ए के लिए y कितना था, इतना था, इसे हम लोग बताते हैं y1, लेकिन अभी जो पार्टिकल b पे पहुंच गया है उसके लिए y चेंज हो गया है, देखिए ये हो गया है y2। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट चेंजेस along with y coordinate, that means x y 2 coordinates here are changing, so we can say the particle is moving in a plane or the particle is having motion in 2 dimension। clear? Similarly अगर मोशन पे पार्टिकल का x y z तीन कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं तो हम लोग उसे बताएंगे मोशन इन 3 डायमेंशन। सपोज मैं ले रही हूँ अ पार्टिकल, अ बॉडी इज फ्लाइंग, तो स्पेस में कुछ भी हम लोग पार्टिकल का मोशन देखेंगे उसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज होता है इन जनरल। सो इसमें हम लोग बता सकते हैं x1 चेंजेस टू x2, y1 चेंजेस टू y2, z1 चेंजेस टू z2। तो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो हम लोग बता सकते हैं दिस पार्टिकल इज हैविंग मोशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट।
Distance is actually the total path covered by a body in a particular interval of time. Displacement is the path covered by a body in a fixed direction in a given interval of time. So the point which to be noted here that in case of distance we are not considering about the direction of the motion of the object. But in case of displacement we are mentioning the factor fixed direction. That means displacement has both magnitude and direction. But in case of distance, we are only specifying the magnitude part. So I can say distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. Let us take an example. Suppose a particle is meant to move from point A to point C. एक पार्टिकल है जो मूव करना चाहता है पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, ठीक है, तो वो कुछ भी पाथ से जा सकता है सी तक पहुंचने के लिए. Suppose in case 1 the particle is moving from A to B and then from B to C. So in that case can we say that its direction is fixed? No, because in the first case first the particle is moving from A towards B and then it is moving from B towards C. So here there are two directions. There is not a fixed direction. So this path from A to B, then from B to C, this path I can take it as the total path covered and I can tell it as the distance covered by the particle. But if I will consider the displacement, that means the particle should move in a fixed direction, which is here given by the path AC. So the particle is starting from point A and moving towards point C. That means its initial point and final point is fixed and the particle is moving in a particular direction, in a fixed direction. That's why I have written here that distance covered is equals to AB plus BC. But I cannot tell it as a displacement. The actual displacement here is AC. But being a fixed direction, I can term it as a vector quantity. So displacement is equals to AC vector. Distance is a scalar, displacement is a vector. It has only magnitude, no direction. It has both magnitude and direction. So distance जो होता है, ये होता है actual path covered by a body. So it can never be zero. सम वैल्यू उसका होना ही चाहिए क्योंकि पार्टिकल एक पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन पे जाता है तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होता ही है जरूर. तो उसके लिए हम लोग बता सकते हैं कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव. रिमेंबर दैट. बट डिस्प्लेसमेंट बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो. इसे हम लोग एग्जाम्पल लेके अभी समझेंगे, ठीक है. तो ये डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट लेके डिस्कस करेंगे तो दे बोथ रिप्रेजेंट्स द लेंथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल. सो इसको हम लोग अगर यूनिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका यूनिट आएगा मीटर इन एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, और अगर हम लोग सीजीएस में रिप्रेजेंट करेंगे सो दैट विल बी सेंटीमीटर. एंड बीइंग अ लेंथ, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू L to the power 1. Clear? Let's discuss about some examples of distance and the displacement, how they varies. So हम लोग पहले लेंगे ये वाला example. जैसे हम लोग ले रहे हैं अभी, suppose a particle is at point A and it is moving in a path like this, in a circular path of radius r. Suppose in the first case the particle is moving from A towards B and then from B to C. Then what will be its displacement? The displacement will be from initial point to the final point or the initial position to the final position, but in a fixed direction. So here the displacement will be AC vector. Clear? Because हम लोग यहाँ पे सिर्फ fixed direction ले रहे हैं A to C तक. हमको displacement अगर निकालना है तो हमको मतलब है सिर्फ initial point पे और final point से, ठीक है. तो अगर हम लोग यहाँ पे distance निकालना चाहेंगे तो distance क्या हो सकता है? The particle is moving the actual path, that is from A to B and then to C. So here we are having a semicircular path. So the distance will be equals to length of this semicircular path, which is equals to pi r. क्योंकि पूरा सर्कल के लिए हम लोग लेते हैं 2 pi r. तो semicircular path आएगा तो उसके लिए क्या आएगा ये pi r, ठीक है. अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए वो कैसे पता चलेगा? R is the radius of this circle.
सो ए से हम लोग सी तक आ रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट हैज अ मैग्नीट्यूड 2r एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पाई आर. वी नो दैट pi is equals to 22 by 7. 22 by 7 means 3.14 approximately up to 2 decimal places. So ये हो गया मेरा 2r, लेकिन ये आ रहा है 3.14r. So I can say that distance is greater than displacement in this case. Okay? अभी हम लोग एक सेकंड केस पे चलते हैं. A से B, B से C तक आ गया है पार्टिकल. अभी मैं बोल रही हूँ कि the particle is moving from C to A again. So what will be the displacement? The displacement will be equals to CA vector directly, the straight line path. But CA vector is in opposite direction to that of the AC vector. So I am writing here CA vector is equals to minus AC vector. So यहाँ पे displacement देखिए मेरा negative आ रहा है. ठीक है. और एक केस हम लोग लेके देख सकते हैं. Suppose the particle is moving from A to C through B and then from C to D, then from D to A. That means particle A से निकला था, अभी B, C, D पॉइंट देके घूम के फिर से A तक आ गया है. तो उसका जो इनिशियल पोजीशन है वो भी A है और जो फाइनल पोजीशन है वो भी A है. तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि the particle has covered a displacement which is equals to zero vector, क्योंकि इनिशियल पॉइंट जो है वही तो फाइनल पॉइंट है. तो वहां पे हम लोग क्या स्ट्रेट लाइन पाथ निकालेंगे, तो वहां पे हम लोग को क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट. देन व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड हियर? डिस्टेंस इज ऑलवेज द एक्चुअल पाथ. ए से लेके ये घूम के बी सी डी पॉइंट देके अभी ए तक आ गया है, तो इसका मतलब इसने पूरा सर्कुलर पाथ कवर कर लिया. तो एक्चुअल पाथ हियर इज इक्वल्स टू द सर्कुलर पाथ, or I can say the circumference of the circle. So that will be equals to 2 pi r. Here also you can say distance is greater than displacement. So I can say that distance can be greater than displacement, or I can say distance is always greater than displacement. But can it be equal to displacement? Yes. See, suppose that happens in a particular case. Suppose suppose a particle is at point P and it is moving to point Q. So this is the initial position and this is the final position. So here displacement is equals to PQ vector. Then what is the actual path followed? That is also the straight line path here. So I can say here the distance is equals to PQ and magnitude of the displacement is also equals to PQ. So distance can be equals to P displacement also. Clear? So summarizing this, I can write down distance by displacement is greater than or equals to 1. और इसका मतलब ये हो सकता है कि distance is greater than displacement and distance can also be equal to displacement. ये आपको थोड़ा याद करना है. ठीक है? This is very very important. और हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे, कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ यूनिक वैल्यू. यूनिक वैल्यू मतलब फिक्स वैल्यू. इसमें इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, फाइनल पॉइंट फिक्स होता है, या हम लोग एक फिक्स डायरेक्शन में ही मूव करते हैं. तो दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ यूनिक वैल्यू. लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो यूनिक वैल्यू नहीं देता, क्योंकि डिस्टेंस जो लेते हैं हम लोग उसे एक्चुअल पाथ कवर्ड ले सकते हैं. ठीक है? एक्चुअल पाथ कवर्ड हम लोग लेते हैं. तो एक्चुअल पाथ कुछ भी हो सकता है. देखिए यहाँ पे मैंने ए से सी तक आया, ए से निकल के यहाँ पे पार्टिकल सी तक आ रहा था, वो वहाँ पे ए बी सी पाथ लेके आया. अगर वो चाहता तो वो ए से सी तक ये पाथ लेके आ सकता था, या फिर ये वाला पाथ लेके आ सकता था, या फिर ऐसे ऐसे घूम के भी यहाँ से सी तक आ सकता था. तो एक्चुअल पाथ ना इसमें से कुछ भी हो सकता है. तो डिस्टेंस हम लोग जब निकालेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक फिक्स ही पाथ होता है. तो हम लोग ऐसे नहीं बता सकते कि डिस्टेंस हैज अ यूनिक वैल्यू, बट येस डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट हैज अ यूनिक वैल्यू. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्पीड, वेलोसिटी, काइंड्स ऑफ स्पीड एंड काइंड्स ऑफ वेलोसिटीज. सो तब तक आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन से मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल 8, प्लीज subscribe it and also press the bell icon for the notification of the new videos. Thank you.